और दूसरी जगह ना उन लोग को बोलो, बुलाओ और व्हाट्सएप हर जगह भेजने के लिए बोलो। ठीक है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। Hello everyone. Sorry for the glitch. There was some issue with the last link. That is the reason why we were not able to continue with that link. That is the reason why we have sent you the new link. Okay? Extremely sorry for that. I understand we are very apologetic about the inconvenience caused. Nevertheless, we will begin our session now. We started with a wrong foot. लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है? See, one moment. First thing that I will take all your queries after this session ends. Okay, we will have a dedicated question and answer session. I will take up all your queries. Okay, so keep your horses down. I will clarify all the doubts. Fine. So this program, many people who happen to be my student previously and having been associated with Change IAS, okay, but there are so many other peoples as well who are not sure that whether this particular program will benefit them or not. How beneficial will it be? How this program is going to run? Okay, because there are so many segments that constitute this program as a whole, but people are not able to understand. So here I am going to clarify all the doubts that surrounds this program, but that is a small thing to discuss about. Okay, we will be discussing it on later stage, but there are certain cardinal thing, there are certain pivotal thing that requires immediate attention. Okay, that requires immediate attention. That what is the situation, why people fail? Many of the students who have been appearing in mains, who have been appeared in previously appeared in interview as well, yet in the last 2 years particularly they are failing. Why? This is a big question. Okay, so what is needed here for us to understand it in a way that can provide you an insight that how one should approach as far as the PT is concerned. Okay, तो बहुत सिंपल टाइप से हम स्टार्ट करेंगे. एंड रिमेंबर वन थिंग दैट this particular year is the best time perhaps to clear the civil services examination. Okay, some few things are coming on other platform other than the YouTube, and people are saying that okay, yeah, I will introduce myself as well. Okay, so I am one of the soldiers of Team Change IAS, and I will be telling you about our entire team in the due process. Okay, as we move forward, later on in the later stage, I'll tell you who exactly is the team, whether that team is appropriate or not to guide you, to help you to sail through this troubled water of our prelims examination. So this year, the seat is 861. You can reckon yourself. Barring the exception of 2019, in the last 5 years, this is the highest number of seats. 861 seats notify किया है UPSC ने.
And if you take the total number of seats that the Modi government has brought, you will find that there is a substantive reduction as far as seats are concerned. So it is very important for us that we should clear in this attempt itself. Otherwise, you never know, there could be reduction of more than 712 seats. Last time 712 seats were there. So you can see here, there is a substantive increase, 150 seats approximately, 149 to be precisely, seats have increased. So more number, there is a more number of seats, okay? More number of seats this year. So whoever is appearing in the year 2020, this is an opportune moment for them. So it becomes very important that you should clear the examination this year itself. Otherwise, you never know, next year 690 seats they might come up with, or the same 712 seat, 150 reduced seat. You can see, you can well imagine the kind of competition it will produce. Okay, तो पहला चीज है कि सबसे important यही है. बहुत time, many people I have seen, I have come across many students who are of the view that last year I have committed certain mistakes, those small mistakes were there, and we have committed that mistake. This year, if we fill the gap, we can catapult ourselves into the zone of safety. But that doesn't happen. Don't underestimate UPSC. Okay? UPSC is generally, it is called as Unpredictable Service Commission. There has to have a reason why UPSC is called as Unpredictable Service Commission. कुछ तो रीजन रहा होगा ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना. ठीक है कि जो पहला जो बार हमने लास्ट टाइम दिया, सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, लिटिल बिट ऑफ फिक्सेशन करके हम पास कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है. बिकॉज इन द लास्ट 4-5 years, if you see how things has unfolded, then 2016 completely UPSC ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया. हाँ, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, 100 क्वेश्चन, लेकिन उस समय पैटर्न चेंज कर दिया, पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिए. इन द ईयर 2016 जो भी बैंक के तैयारी कर रहे थे, बैंक रिलेटेड जॉब कर रहे थे, उनका सिलेक्शन ठीक ठाक हो गया. जो पहले बैंक में थे उनका सिलेक्शन ठीक ठाक हो गया. बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हो गया था. Current affairs was one-liner. UPSC never asked one-liner current affairs, but the current affairs was one-liner. And generally UPSC aspirants are not comfortable with one-liner current affairs. Okay? They are good at conceptual understanding. They are good at thematic aspect. UPSC junked it. तो 2015 में जिस लोगों ने वो सोच के किया होगा कि यस लिटिल बिट ऑफ फिक्सेशन से हमारा 16 में हो जाएगा फेल करके. 2017 again they have turned the tide. Questions asked was very different. बहुत ही अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है उसने पूछा. कैसा क्वेश्चन पूछा भैया? अभी एक सवाल है. What kind of question they asked? Okay, they asked very deep question, highly conceptual question. So from 2015, 2016, 2017, you see 2018 again. During the time of 2017, many people thought that okay, current affairs plays a very important role. Current affairs plays a role like anything. If you don't read voluminous current affairs, भाई हम पास ही नहीं करेंगे. So every coaching institution, they came out with their own current affairs magazine. Now if you see the pattern from the year 2018, UPSC again tweaked it. 2018 से फिर से UPSC ने ट्वीक किया. अब यूपीएससी ने क्या ट्विक किया, ये फिर समझने वाली बात है. सो यूपीएससी ट्विक लिटिल बिट. दे हैव कंप्लीटली अबेंडन्ड करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स को छोड़ दिया उसने. करंट अफेयर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन, मुश्किल से 5 क्वेश्चन पूछे. करंट अफेयर्स को यूज करके अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा. ओके, वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ओके, बट एक बहुत सारा लॉजिकल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, that number of seats are reducing. You can see the trend here. Number of student appearing in the IAS examination is increasing. 5.5 लाख के आसपास लोग अपियर करते हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं. ठीक है,
और क्वेश्चन रिमेन्स द सेम 100। तो अगर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पहले 14,000 स्टूडेंट को लिया जाता था, देयर आर एट टाइम्स व्हेन 16,000 स्टूडेंट वाज आल्सो टेकन, अब जो ले रहे हैं लगभग 10,000 के आसपास ले रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन कम होता है तो लॉजिक क्या होता है? व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक इज द कट ऑफ शुड गो हाई, कट ऑफ जो है उससे होना चाहिए अधिक, लेकिन कट ऑफ इन द ईयर 2018 वाज 98 ओनली। 2019 अगेन 98 ओनली, ठीक है। 2020 cutoff was 92 only, and the year 2021 we don't have the official cutoff, but the most probable, most experts are saying that the cutoff would be around, we have also reckoned, it will be around your 95 plus minus 2, means 93 to 97 cutoff would be that. No one said it will go beyond 100. Why? कुछ तो होगा ना. There has to have something that could tell the story about reduced cutoff with reduced number of people who are got to write mains. Normally cutoff ऊपर होना चाहिए, 110, 108 ऐसे होना चाहिए. ओके? लेकिन कट ऑफ भी नीचे आ रहा है, सिलेक्शन भी कम आ रहा है, ये तो रिवर्स प्रोसेस है. इसका मतलब है कि there is some fundamental change that UPSC has brought, and that is the sole reason why the student is finding it very difficult to clear prelim stage. And no wonder why most people, even the people who are in service right now, even the people who have cleared with a flying colors, बहुत अच्छा रैंक लाए हैं, even those people have the same opinion, and the opinion is that PT is the toughest one. PT जो है सबसे toughest है, ये एक विचार बन गया है. Mains is not that tough. Interview perhaps is the easiest one. तो PT में क्या हुआ है ऐसा जो हमको मतलब टफ लग रहा है? ठीक है. अब एक चीज और है, आप ध्यान से सुनिएगा. इफ यू सी द ट्रेंड, इफ यू सी योर लोकेलिटी, यू विल रियलाइज सो मेनी थिंग्स. सो देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू से हियर, दैट यू माइट हैव सीन पीपल हु हैव क्वालिफाइड, then their siblings also qualify. For example, Tina Dabi secured rank 1, All India rank 1 उसने टीना डाबी ने लाया था. उसकी सिस्टर जो अभी कुछ दिन पहले फाइनल रिजल्ट आया, उसने ऑल इंडिया रैंक 15 लाया. Now what is so special about that family? Okay? What is so special about that family? I don't think there is anything special about the family. They also eat the same thing that we eat. Only the differentiating factor between Ria Dabi and other aspirant is that the secret of cracking this examination was transferred from one family member to the other family member. वो secret को transfer कर दिया गया है. उसे बताया गया कि इसी ट्रैक पे चलो, यही सही ट्रैक है, इसी तरह से रिदमिक रहो, इसी तरह से नोट्स बनाओ, you will be a success. This was told. Now what is important, that if such certain wisdom is there in the market, that the track one should follow will lead to success, then everyone is entitled to know about that track. Okay? So our purpose here in this program, one of the central purpose of this program is to tell you about that track. Okay? This is the years of experience and the years of toiling that we have realized, yes, this is the track that one should go. The chance multiplies manifold. Okay? Otherwise, just remember, 5 lakh aspirant appear in the examination and only 712 people clear. When so many people is wanting the same thing, हर कोई इंसान जो है वो एक ही चीज चाहता है,
वो भी चाहता आईएएस बनना, आप भी चाहते हो आईएएस बनना, तो आप क्यों बन पाएंगे आईएएस और कोई क्यों नहीं बन पाएगा आईएएस? सवाल ये है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर लाइक दैट. It is not board examination where you perform, you will get the marks. So many people could get 95%, 98% marks. But here, only one person will secure rank 1. So that is what we have to understand. The path that is needed for us to crack this examination, that is what is needed, that is what we are going to understand. Okay? तो हम लोग इसी पे फोकस करेंगे by and large. तो देखिए, सबसे पहला वो ये चीज है कि हम लोग ये समझे कि आखिर लोग फेल क्यों करते हैं, why people fail and why it has become so difficult, particularly in the last 3 years, to crack prelims. Why prelims has become such a worrisome stage. It is very easy to say that yes, the nature of the prelims become dicey. Many people, many teachers, many seniors would say कि जो स्टूडेंट है, जो एग्जाम है वो थोड़ा डाइसी हो गया है. बट आस्क देम दैट फाइन, डाइसी इज फाइन, वी ऑल्सो टेक इट, दैट इज द रीजन व्हाई देयर इज सो मच ऑफ यू एंड क्राई. बट व्हाट लेड टू दैट डाइसीनेस? दिस इज द पॉइंट, दिस इज समथिंग दैट वी गॉट टू अंडरस्टैंड. हमें समझने की इसकी जरूरत है, इसका आवश्यकता है. ठीक है, तो मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया. आई हैव कैटेगराइज्ड इट टू सर्टेन पार्ट, कि सब आदमी के लिए अलग अलग रीजन रहता है फेलियर का. ठीक है, पहला चीज, जनरल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एवरीवन. ओके, यस, दिस इज एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम. आवर बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे itself, you can say. Technically it started from today, but substantively we will start it from tomorrow. And from tomorrow, only those people who have subscribed to the batch, only they will get the facility. Okay? Now, 3 भाग में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है. ठीक है, एक है कि जनरल प्रॉब्लम्स दैट एवरीवन फेसेस. सेकेंड इज जो पुराने स्टूडेंट है, द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 3 years, 4 years, they are not able to qualify. Why? Knowledge can't be the issue. Because if you read the same thing for the last 4 years, definitely knowledge is not an issue. So now what is the issue? That is a big question, right? तो उसके लिए, और एक नया कमर जो है, न्यू कमर जो नए आते हैं, जो पहला जिनका अटेम्प्ट है, उनके लिए क्या इशू होता है? ठीक है, या फिर एक अटेम्प्ट अगर उसने दिया है तो उनके लिए क्या इशू है, ये भी समझना जरूरी है. बिकॉज वी हैव हियर पीपल hailing from different areas. I cannot be speaking in Hindi only. Many people are from South India, so it will be broadly English and a little bit I will speak in Hindi as well. Okay? तो 3 चीज है, one by one हम लोग सबको डिस्कस करेंगे. You can easily point out or correlate your problem with the problem that I am discussing. ठीक है, समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, रिमेंबर, अनलेस अंटिल यू डोंट डायग्नोस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू यू एंड द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, तब तक आपको पास नहीं कर सकते हैं. आई एम वेरी फ्रैंक, दिस इज अ वर्ड दैट हर्ट्स thousands of people, thousands of aspirants. But truth must be told. Unless until you don't embrace the truth, unless until you don't embrace your own problems, there is no likelihood that you can fix it. कोई फिक्स नहीं कर पाया है. हम और आप तो ऑर्डिनरी इंसान है, सीधी बात है. कोई नहीं कर पाया दुनिया में फिक्स. ठीक है, तो हमें पहले प्रॉब्लम समझना होगा, फिर फिक्स कर सकते हैं. तो जनरल प्रॉब्लम्स हम बातें करते हैं कि जनरल प्रॉब्लम में क्या दिक्कत है. See, there is a question. ठीक है, 100 क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है, पहले भी पूछा जाता था. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब जो है, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटी. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटी. आई थिंक दैट यू कैन इजीली रीड द क्वेश्चंस. आई हैव केप्ट द फॉन्ट, डेलिबरेटली केप्ट द फॉन्ट बिग इनफ फॉर यू टू बी लिजिबल. ठीक है, ये लिजिबल होने के लिए बड़ा किया है.
अब क्वेश्चन को पूछने के तरीका में चेंज कर दिया है. इफ यू सी, पहले कहते थे लक्ष्मीकांत बुक पढ़ लो एंड इट विल बी सफिशिएंट. Last year's paper, if you see, then you will find Lakshmikant book to be highly insufficient. Why? What happened to Lakshmikant book? हाँ, एक सवाल है. लक्ष्मीकांत बुक को हुआ क्या आखिर? तो भाई लक्ष्मीकांत बुक को कुछ नहीं हुआ. यूपीएससी को थोड़ी दिक्कत हो गई. यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन पूछते थे मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड. अब जो मूव कर गए हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी की तरफ. 40% question from polity section, they are asking political philosophy, and it won't be a wonder or a surprise if they increase it to 70%. अब उसमें मूव कर गए. पहले सिंपल पूछते थे वो लोग कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन सा आता है, फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आता है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है कि क्या है. ठीक है, अब नहीं पूछ रहे हैं. उसका क्वेश्चन का काउंटिंग कम हो गया है. बढ़ा किसका है? काउंटिंग बढ़ा है पॉलिटिकल फिलॉसफी पार्ट का. और नहीं बनेगा आपसे अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी को अच्छे से नहीं समझते हैं तो. दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं, समझिए आप लोग. जस्ट बी पेशेंट, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस. ठीक है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी? If you don't understand the core idea of liberal democracy, you cannot make this question a correct one. तो ऑप्शन में क्या है? A committed judiciary, ठीक है, centralization of power, elected government, separation of power. अब देखो, most people this year उसने मार दिया है committed judiciary. हम लोगों ने क्या सोचा कि कमिटेड जुडिशरी वो जुडिशरी है जो कि फुल्ली कमिटेड टू द कॉज ऑफ द पीपल है. फुल्ली कमिटेड टू द कॉज ऑफ द पीपल है. लेकिन कमिटेड जुडिशरी इज रादर स्लैंग. पॉलिटिकल फिलॉसफी में कि ये स्लैंग है. यहां पे लोगों के लिए कमिटेड नहीं कह रहा है, वो एग्जीक्यूटिव के लिए कमिटेड के बारे में बात कर रहा है. बिकॉज द फाइनली अथॉरिटी as far as the appointment of judges in most of the countries is bestowed on the executive. तो हम लोग मोस्टली बोले नहीं यार ये सबसे बेस्ट है, पूरा सेफगार्ड करता है. लिबरल डेमोक्रेसी मतलब राइट्स होना चाहिए, बहुत सारा चीज होना चाहिए, इसको पिक करेंगे. गलत है. तो सेकंड वाला सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कभी नहीं होगा. इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड सेपरेशन पावर, बहुत लोगों ने इसमें मार दिया है इलेक्टेड गवर्नमेंट, बहुत कम लोगों ने मारा है सेपरेशन ऑफ पावर. आंसर separation of power है. So they are shifting the trend. You are failing again and again. Reason is they are shifting the trend. If you don't catch the trend, you are again going to fail. Again you are going to fail. This is just a question of polity. बहुत सारा different भी आएगा कि सही ट्रेन ही नहीं पकड़ोगे तो आप सही डेस्टिनेशन पे ही नहीं पहुंचोगे. यूपीएससी मूव कर रहा है चीजों से, आप मूव नहीं करोगे तो आप पास नहीं करोगे. एज सिंपल एज दैट. गॉट इट? चलो, दिस इज वन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैव डेमोन्स्ट्रेटेड टू यू. डू वी हैव अनदर वेराइटी? यस. अब देखो, ये वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों है वो भी बताता हूं. ठीक है, देखिए, दे प्ले विथ वर्ड्स. When they start playing with words, you don't just need concepts. Merely having concepts won't help you in the finding the correct choice. Correct choice को आप नहीं खोज पाएंगे, ढूंढ पाएंगे अगर उसने लैंग्वेज के साथ खेलना शुरू किया. जब लैंग्वेज के साथ खेलना शुरू किया उसने, इसका मतलब है कि आपको यू नीड एप्टीट्यूड, लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड एंड द लॉजिकल पार्ट ऑफ द एप्टीट्यूड. दोनों एप्टीट्यूड नहीं रहेगा, इस तरह क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा. क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या है? विच वन, लास्ट ईयर का ही है, मैं बाहर का नहीं लिया, मैं लास्ट ईयर क्वेश्चन ही लिया हूं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट? एनी पॉलिटी का कोई भी टीचर, कोई भी बुक उठाओगे
उसमें एक बहुत सिंपल सा दिया रहता है, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का डेफिनेशन क्या है? तो बोलता है 4 चीज होना चाहिए। एक टेरिटरी होना चाहिए तुम्हारा, उस टेरिटरी में पीपल रहने चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 गवर्नमेंट होना चाहिए, एंड नंबर 4 उस गवर्नमेंट मतलब वो जो टेरिटरी है वो सोवरीन होना चाहिए। ये 4 चीज है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानता है, लेकिन इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। नीचे से हम पढ़ना शुरू करते हैं। रीजन है, अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन a definite territory with a central authority and executive responsible to the central authority in an independent judiciary। ठीक लग रहा है? इसमें कोई बुराई नहीं लग रही है, अच्छा खासा स्टेटमेंट है ये भी। फिर a number of person who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition, and government. This also looks good. This also looks good. Third, a politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of sustenance, sorry। ये भी बुरा नहीं लग रहा है, लग रहा है वही स्टेट ही है, हर काम तो स्टेट ही कर रहा है ना। ऑर्गन ऑफ द स्टेट 3 होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। कैसे बनेगा? फिर फर्स्ट, अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन, जो भी है, व्हाटएवर। Now the question is, this requires good linguistic aptitude, logical reasoning भी है। बहुत लोगों ने उसमें ये मारा है बी, लेकिन बी में और ए में एक डिफरेंस है। द डिफरेंस इज ऑफ सोवरेंटी। स्टेट देखो, टेरिटरी होना चाहिए, तो क्या बोलते हैं? अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी। टेरिटरी डेफिनेट है। अ कम्युनिटी ऑफ पर्सन मतलब पीपल है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, सोवरेंटी है, एंड पोजेसिंग ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है। दिस इज द मॉन्टेविडियो कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि 4 होना चाहिए। इस यही एक ऑप्शन है जहां 4 है। मैक्सिमम लोग गलत करके आए हैं, मैक्सिमम लोग डिड इट इनकरेक्टली। व्हाई? linguistic aptitude is needed. This is just one question, and make no mistake, there are not less than 15 to 17 question last year itself. वो एप्टीट्यूड चाहिए, आप नहीं डालेंगे, गलत करेंगे, क्यों होगा? अब ये क्वेश्चन जाना जाना क्वेश्चन है, इसको भी अगर आप गलत कर देते हैं तो नहीं जाना हुआ क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे, कैसे पास करेंगे हम? सवाल बहुत सिंपल है, देखिए, थिंग्स आर वेरी सिंपल इफ यू लुक एट इट सिंपल वे, ओके, बट when you implement those things in reality, things are not though that simple. ठीक है, कोई और हमारे पास है क्या? चलिए अब देखिए, हां अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है वो इंटरलिंकेजेस पे पूछा जा रहा है, कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक किया जा रहा है। ये एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। If the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would not do? It would not do. आंसर करेक्ट ढूंढिए। अब देखिए, हर बुक में, हर नोट्स में आपको दिखता है कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, आपको दिखता है कि व्हाट इज लिखा रहता है कि व्हाट इज एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पे लिखा हुआ है SLR, MSF, बैंक रेट, रेपो रेट। हर बुक में, हर किसी भी दुनिया का किसी भी चीज में देखेंगे आपको यह चीज दिखेगा, आपको दिखेगा यह चीज। लेकिन अब ये क्वेश्चन इंटरलिंक कर दिया है कि कौन से टाइम में एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई होगा, कौन से टाइम में रिवर्स अप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई कौन से टाइम में क्या करेगा? हो सकता है कि दे कैन गिव यू अ सिचुएशन, बेस्ड ऑन दैट सिचुएशन दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन and tell you that you are the governor of the RBI. What would you do? If you don't have this ability, interlinkage ability, you cannot do it. नहीं करेंगे पास आप।
Well, previously, 4 years back, if you see, or even 3 years back, if you see, the number of questions, such questions were very less. बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन वैसे थे, लेकिन अब जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली. अब जो है बहुत नंबर बढ़ गया है. ये नंबर जो क्वेश्चन बढ़ जाने का कारण है, दैट इज वन रीजन व्हाई देयर इज इश्यू विद द प्रीलिम्स. डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन? यस, वी हैव. अब देखो ना कि एक्सटेंशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. अभी जैसे ये क्वेश्चन लिया गया है, मदनपल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, हिस्ट्री का है. और बहुत लोग कुछ पूछते हैं एक सवाल. मेनी पीपल आस्क दिस क्वेश्चन, वेरी ऑफन दे आस्क दिस क्वेश्चन, दैट सर ये कौन सी बुक से आया है? किसी बुक में नहीं लिखा है भाई साहब. इट इज नॉट रिटन इन एनी बुक. किसी बुक में नहीं लिखा है ये चीज. जब कोई चीज बुक में नहीं लिखा है तो फिर हम कहां से पढ़े? वेल, घबराने की जरूरत नहीं है. मैं सोर्स भी बता दूंगा आपको, कर पाओ तो कर लेना. अब ये क्वेश्चन जो है, हर समय हम पढ़ते हैं दिस नेशनल एंथम, हु रोट नेशनल एंथम, हु when the national anthem was first time sung, all this thing information we know, okay, but we don't read anything beyond that, and most of the books are also contended to the extent what I just mentioned. वहीं तक वो भी बुक में मेंशन करते हैं. तो आपको इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो कैसे करोगे? अब ये सब चीज एक्सटेंशन क्वेश्चन है. रिमेंबर, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है. आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है. आप अगर इस चीज को सर्च करना एक बार इंटरनेट में, यू विल फाइंड द सेम आर्टिकल was published in the Hindu, the Indian Express, or several other newspaper, even Telangana Times. It is mentioned there. Exactly the same thing mentioned there as well. Everyone tells you to read Hindu newspaper. Well, do you focus on such things? Well, we don't. We very often do that. We very often don't do that. We miss it. Now, questions are asking from articles. Remember, so many questions, so many questions are asked. They are asking it directly from your articles. आर्टिकल से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो ये सब क्वेश्चन गया, नहीं बनेगा आपसे एग्जाम. भाई, इन जनरल सर्कमस्टेंसेस दीज आर कॉल्ड एज टफ क्वेश्चन. In exam like condition, your efficiency reduces by 30%. Remember it. Okay? Now, current affairs. Now, current affairs is an area which create ripple in the IAS circle. So many coaching institutions have flourished only on the spine of current affairs. So many magazines come. Every coaching institution come out with a magazine. If you truly deep inside it, in your heart, if you ask yourself that whether questions are coming from those current affairs magazine, answer is no. ढूंढ लो एक बार. विश्वास नहीं होता है. लास्ट कोई भी साल का ले लो, उठा लो. 2021 उठाओ, 20 उठाओ, 18 के बाद कुछ भी उठाओ, ढूंढ के दिखाओ डायरेक्टली करंट अफेयर्स मैगजीन. चाहे वो विजन आईएएस का मैगजीन हो, दृष्टि आईएएस का मैगजीन हो, राव का हो, हंड्रेड्स ऑफ आईएएस इंस्टीट्यूशंस आर देयर. दिखाओ एक भी क्वेश्चन नहीं आता है. क्यों? पूछने का तरीका बदल दिया है उसने. आर्टिकल से पूछ रहे हैं. पिछला क्वेश्चन आर्टिकल. अब क्या किया गया है? करंट अफेयर्स को सब कहते हैं मुश्किल से 5 करंट अफेयर्स आता है. सच्चाई भी है. दिस इज द ट्रूथ.
only 5 question comes from current affairs. So now the question is, you have 5 question, output is 5 question, and input is this much. Minimum 1200 page of mugging up. Output 5. Again, it is a matter of calculation. Secondly, if you see this question, ठीक है, 21st February is declared to be International Mother Language Day by UNICEF. ठीक है, करंट में आया है, हर जगह है ये चीज, हर जगह है, था न्यूज़पेपर में आया है, लेकिन अब इसको हिस्ट्री के साथ जोड़ दिया. द डिमांड दैट बांग्ला हैज टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. इंडिया भी नहीं बोला, पाकिस्तान के बारे में बात हो रहा है. दे हैव कोरिलेटेड इट विथ हिस्ट्री. कहीं भी ये करंट अफेयर्स है, एंड देयर आर इन्यूमरेबल एग्जांपल्स of such kind of question. They are very well packaging and integrating the current affairs with the traditional part. इसीलिए there is a no standalone question of current affairs. That is the reason why reading, the reason why the magazines produced by Coaching Enterprise is defunct as of now. You have to change your strategy. Now you wonder why people fail, why cutoff is going down, cutoff नीचे क्यों जा रहा है. कारण है, समझिए इस कारण को, समझ लेंगे काम हो जाएगा, नहीं समझेंगे you will fail again. I know this is a hurtful word, but yes, you will fail again. If you don't understand, if you don't catch the right train, you will never reach the right destination. ठीक है. My purpose here, as far as orientation program is concerned, to tell everyone the truth. Okay. Now, दूसरा, और ये सब तो क्वेश्चन हुआ. This is one segment, the kind of question they are asking. There are 4 variety of question that I have shown to you, but there are not less than 12 to 13 variety of question that UPSC ask. Based on our own research, we have come to the realization here that those variety of question they ask, yes, how they are asked, how to approach those questions, this is something that we will be discussing in the program, not here. Okay. अब दूसरा है कि पेपर का नेचर बहुत लेंदी हो गया है, लेंदी बहुत हो गया है पेपर का नेचर. इसका मतलब, इफ यू सी द थिकनेस ऑफ लास्ट ईयर्स पेपर एंड इफ यू सी द थिकनेस ऑफ द सेम यूपीएससी पेपर almost 3 to 4 years back, you will find the number of pages much higher compared to previous occasion. पहले जो नंबर ऑफ पेजेस था उससे बहुत ज्यादा बढ़ गया है. क्यों किया है? अब इसके कारण क्या होता है कि हम सोचते हैं कि चलो ठीक है, पहली बार अटेम्प्ट किया, सेकेंड टाइम फिर से रिवाइज करेंगे. रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता है, सेकेंड रीडिंग का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि लेंदी कर दिया है. Now these are the small things people don't generally notice. If somebody tells you this, then perhaps you will realize, okay, from the very beginning itself we have to keep pace. If you don't maintain the appropriate pace, well, you will not be able to do it twice. और याद रखिए, मेरे समझ से 3 बार उसको रिवाइज करना मांगता है. ठीक है, 3 बार कर लेंगे तो हमारे समझ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस अधिक कर पाएंगे और मार्क्स भी अधिक आएगा. लेकिन लेंदी क्वेश्चन का पेपर बहुत हो जा रहा है, रिवाइज नहीं करो. लास्ट टाइम इट हैपेंड विथ मेनी पीपल, दोज हु हैव अपीयर्ड लास्ट ईयर. यू कैन कैलकुलेट व्हाट वेंट रॉन्ग. दिस इज वन ऑफ द रीजंस. एंड नेक्स्ट ईयर भी ऐसा आएगा, डेफिनेट आएगा. क्यों छोड़ेगा यूपीएससी जिस चीज के कारण से आपको फेल करा सकता है वो. नेक्स्ट, अब एक चीज और है. This is very funny. It is valid for teachers as well. It is valid for students as well. But this is a biggest scam, I would rather say. So when you see a question, individual question, you will find, हाँ, easy है. हाँ, repo rate से पूछा है, बढ़ेगा घटेगा, whatever it happens. Okay.
बहुत इजीली आप कह सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट दिस इज एन एग्जामिनेशन, कंप्लीट पेपर में परफॉर्मेंस कैसा है वो डिटरमाइन करता है। बाहर एग्जाम के बाहर जब निकल के कोई देखता है उस क्वेश्चन लगता है अरे यार इजी है, टीचर ऑलवेज से ठीक है इजी है, बिठा दो उस टीचर को ही एग्जाम में, पता चल जाएगा कितना दम है। लेकिन हां, समझने वाली ये बात है कि जो क्वेश्चन को पूरी पेपर यूपीएससी व्हेन यूपीएससी विजुअलाइज इट इन टोटलिटी, नॉट इन टर्म्स ऑफ वन क्वेश्चन, which question is easy, which question ye. They have kind of placement there, that of the question if you see, then most of the time you will see the easy question are in between 40s से 75 के बीच में आपको easy question थोड़ा मिलेगा ज्यादा। लेकिन वो easy question में एक रिदम बनाता है कि पहला क्वेश्चन बहुत आसान लगा, यस, दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान, यस, then your speed increases, yes yes yes, and then you start missing the thin line question, thin line tweak of word that UPSC does. एक एग्जांपल ऐसे ही देता हूं मैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल दे से नो कॉन्फिडेंस मोशन, which of the following statement is correct? Number 1, only Lok Sabha has power over money bill. ठीक है, if the no confidence motion is passed in parliament, then the council of minister has to resign. Select the correct choice. A, B, both, neither. अब यहां पे जल्दी जल्दी में द वर्ड पार्लियामेंट जो है वो हमारे दिमाग में रहता है, हाँ पार्लियामेंट सही है सही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हटेगा। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज द वर्ड इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नहीं करता है उसको, लोकसभा करता है। इस तरह का क्वेश्चन फंसा देगा। जब एग्जाम के बाहर आप निकलेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड इतना आसान क्वेश्चन कैसे गड़बड़ हो गया। इट हैपेंस विथ मेनी स्टूडेंट। वैसे वैसे 5 क्वेश्चन गलत कर दो, यू आर आउट। इसीलिए मैंने बोला इंडिविजुअल क्वेश्चन कंप्लीट पेपर को देखना होगा, तब आप समझ सकते हैं। बिकॉज द परफॉर्मेंस इज अबाउट कंप्लीट पेपर, नॉट इंडिविजुअल क्वेश्चन। नो वन केयर्स, नो वन गिव अ डैम अबाउट वेदर यू आर एबल टू सॉल्व अ टफ क्वेश्चन और नॉट। मे बी टफ, बहुत बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर टफ क्वेश्चन मैंने सब सॉल्व कर लिया, इजी इजी क्वेश्चन में रह गया। इजी क्वेश्चन में रहा नहीं, तुम्हारे को रोका यूपीएससी ने। यूपीएससी स्टॉप्ड यू देन एंड देयर। कंप्लीट पेपर का कहानी, द स्टोरी इज अबाउट कंप्लीट पेपर, नॉट द इंडिविजुअल क्वेश्चन। ओवरऑल परफॉर्मेंस दैट मैटर्स, दैट मैटर्स। गॉट इट? तो ये एक प्रॉब्लम आता है। जनरल प्रॉब्लम इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग। अनदर थिंग इज दैट यस, this is valid and valid for the last not less than 5 years or maybe 6 years. Okay, any given day you would be knowing at max only 35 questions with 100% surety. 100% surety से सिर्फ आप मैक्सिमम 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट 35 क्वेश्चन से आप पास नहीं करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आपको कैलकुलेटेड गेस जिसको कहते हैं, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू द कैलकुलेटेड गेस। एंड रिमेंबर, कैलकुलेटेड गेस इज नॉट दैट इजी टू कम बाय। देयर आर सर्टेन टेक्निक्स ऑफ कैलकुलेटेड गेस befitting the UPSC psychology, not your psychology or test series for that matter. तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वहां पे आप 75% जानेंगे, 80% जानेंगे, 90% जानेंगे, 100% नहीं जानेंगे। अब वो क्वेश्चन जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आपको अलग दिमाग लगाना होगा। वो साइकोलॉजी मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट पोजेस। द नेसेसिटी एंड द नीड ऑफ सच ability, such aptitude has increased tremendously but in the last 3 years. पिछले 3 साल में उसका यूटिलिटी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, यूटिलिटी बहुत बढ़ गया है। ठीक, चलिए, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज कि
wrong strategy. देखिए, UPSC paper is the yardstick, but most of the student make their yardstick as test series. You take test series are very expensive as well nowadays. 20,000, 25,000, 15,000, 12,000 ऐसे टेस्ट सीरीज का है. 30 टेस्ट, 40 टेस्ट, 60 टेस्ट पीपल आर ऑफरिंग. आप देते हो, आप जिद्दोजहद करते हो कि हमको टेस्ट में अच्छा नंबर आए, 90 आए, 100 आए, 105 आए, 130 आए, 140, 150. लाइकवाइज यू डू, बट टेस्ट सीरीज में स्कोर करते हो, रियल एग्जामिनेशन में स्कोर नहीं होता है. क्यों? द क्वेश्चंस इन टेस्ट सीरीज इज वे टू डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चन इन यूपीएससी. टेस्ट सीरीज अगर 50 टेस्ट लेता है तो उसे 5,000 क्वेश्चन बनाना है. यूपीएससी को सिर्फ 100 क्वेश्चन बनाना है. इट इज वेरी टू मेक अ क्वेश्चन टफ. इट इज लिटिल difficult to make question easy, but what is the appropriate level of the question as far as UPSC's trend is concerned? It is extremely tough job for you, for anyone, any coaching institute, anyone to make that. Why to put so much of effort? I'm not questioning the talent. I'm just questioning why to put so much of effort when you have, with lesser effort, you can earn in crores. Simple business rule. I believe that you understand it. I believe that you know it, but I'm not sure whether you understand it. Sometimes we develop our own ability of calculated guess based on certain test series, and we end up applying the same technique in UPSC, and we end up getting, of course, 80 नंबर ज्यादा नहीं आएगा, 80-90 के बीच में फंस जाएंगे आप. 80-90 के बीच में फंस जाएंगे आप. ये है कहानी. तो इस चीज को तो मत ही फॉलो करना. टेस्ट सीरीज सॉल्व करो फॉर अदर पर्पस, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मार्क्स, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ये. Whether you join the course or not, that's a different matter, but this is ordinary suggestion. That's the reason why we kept this open, so that vast majority of our aspirant would be able to get what is needed. अब देखो CSAT. CSAT again has become a problem. The level of CSAT during our time, when we used to prepare, the level of CSAT was very low. And that is the reason why people were scoring 180, 190. Out of 200 में से 180 स्कोर कर देते. आज के डेट में कोई नहीं करता है. क्यों? CSAT UPSC ऑलवेज चाहता था कि CSAT का मार्क्स जुड़े. And because of this आंदोलन and everything, CSAT was made qualifying. Since then, UPSC year after year started enhancing the level of questions. क्वेश्चन का लेवल बहुत बढ़ा दिया है. उसके कारण से लोग देते हैं और गड़बड़ हो जाता है. बहुत लोग बोलते हैं अरे चलो मैथ रीजनिंग नहीं होगा तो इंग्लिश कर लेंगे, इंग्लिश भी कर लेंगे. वेल, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंशन. ऑल अदर क्वेश्चन विच लुक्स लाइक कॉम्प्रिहेंशन but which in reality technically is not a comprehension. That is a question of critical reasoning. The technique of solving such question is way too different from comprehension. बहुत different है. We apply the same technique method what we have learned as far as comprehension is concerned, and we end up doing the question incorrectly. इसी में पास नहीं होते, बहुत फेल हो रहे हैं. Even make no mistake, many of the engineers fail here. पिछले साल का अगर लेवल देखो तो in my opinion, near about 40% enhancement. The kind of question they have asked in the year 2020 and the kind of question they are asked in 2021, there is an enhancement of 40% approximately. 10-15% और बढ़ा दिया तो क्या करोगे तुम? क्वालिफाइंग है. यूपीएससी हैज अ लॉजिक. यू आर आउट ऑफ लॉजिक अनफॉर्चुनेटली. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है फेलियर का. दिस आर जनरल कॉज. दिस इज समथिंग दैट हैपेंस विथ एवरीवन. ओके, नाउ
ओल्ड फोक के साथ क्या दिक्कत होता है? जो जो पुराने होते हैं, पुराने मतलब कि 2 साल जिनका हो गया है प्रिपरेशन का, और 2-3 बार अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, मतलब एक अटेम्प्ट से ज्यादा, आई कॉल देम पुराने, ओल्ड फोक्स। ठीक है, सो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ओल्ड फोक के साथ, दैट दे डोंट चेंज, दे बिकम वेरी ऑब्स्टिनेट, बहुत जिद्दी हो जाते हैं, ऑब्स्टिनेशन आ जाता है। दे थिंक दैट ऑल विजडम लाइज इन देम, सब नॉलेज उसके पास है। उनके पास सही में नॉलेज तो होता है, whatever is written in Spectrum, whatever is written in other books, everyone knows the book, they are fine with that. The only issue, the only problem, they are not able to, they are blinded by the new wave. उनको लगता है सब मेरे को आता है, और वो चेंज करने का जो रिक्वायरमेंट है वो कभी फील ही नहीं करता है। ओवर कॉन्फिडेंस होता है एज फार एज कॉन्सेप्ट इज कंसर्न, नॉट स्किल्स। स्किल पे कम वर्क करता है, फिर से उसी बुक को उसी का ठीक है देख लेंगे, एग्जाम आएगा बना देंगे, ऐसा थिंकिंग होता है। ठीक है, अब फॉलो ट्रेडिशनल मेथड, वो जो ट्रेडिशनल मेथड है वही फॉलो करता है। नया मेथड जो है, जो होना चाहिए, नया मेथड क्या होता है? देयर इज नथिंग कॉल्ड न्यू, रिमेंबर इट। New method means if UPSC has changed its way of asking question, if UPSC has opened up 15 threads, at least you should be able to cater to 12th thread. This is a problematic thing. ठीक है। Fourth thing is they don't read newspaper at all. Newspaper पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना ही छोड़ देते हैं। They rely heavily on monthly current affairs magazine, और monthly current affairs magazine कहानी मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, too much focus on coaching current affairs material। फेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे बताइए? कोई भी फेल करेगा, नो मैटर हाउ ब्रिलियंट यू आर, इफ यू डोंट चेंज योर स्ट्रैटेजी यू कैन नॉट। You know that if the path A leads to failure, if you traverse the same path again, it will lead to failure, because the destination of that path is failure. You have to change the path. You have to junk your overconfidence. ये नहीं करते, ये पुराने लोगों के साथ एक दिक्कत होती है जिसके कारण फेलियर होता है। ह्यूमिलिटी, ओनली लर्नेबिलिटी कैन ब्रिंग यू सक्सेस। सीधी बात, इन यूपीएससी हाँ यू कैन सक्सीड इन परहैप्स इन आईटी, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, गो टू आईआईएम्स और गो टू एनीवेयर यू वांट, नॉट हियर, इट्स नॉट द प्लेस। यूपीएससी एग्जाम पास करने के लिए आप में ह्यूमिलिटी चाहिए, ऑब्स्टिनेशन जो है, जिद जो है, जिद करो पास करने की, मेहनत करने की, टेक्निक पे जिद मत करो। यूपीएससी चेंज करता है तो थोड़ा चेंज करना होगा। ओल्ड फोक के साथ ये है, न्यू फोक्स के साथ क्या, नए जो बच्चे हैं उनके साथ क्या दिक्कत है? ठीक है, सबसे बड़ा उनके साथ होता है कोर्स कंप्लीशन इज द इशू। ठीक है, कोर्स कंप्लीशन इज वन ऑफ द मेजर इशू विथ देम। ठीक है, रिवीजन कैसे किया जाए, व्हाट विल बी द रिवीजन साइकिल, दैट अगेन इज अ प्रॉब्लम, एंड लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ कोर्स कंप्लीशन, डेफिनेटली नो वन वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। ठीक है, इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड वेल, डेफिनेटली द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट इज नीडेड दैट वोंट बी देयर। दिक्कत तो होगी ऑफ कोर्स। देन कंफ्यूजन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, व्हाट टू रीड, व्हाट टू लीव। Finally, when they start their preparation, they start with newspaper. In the middle of the time, they change their strategy towards coaching institute material. Later on, they don't even know that whether to revise the newspaper material or to revise the monthly magazine or the final salvo that coaching institutions throw at you would be that PT special, PT 365 or something like that, such kind of document produced by every institution. वो कर लेते हैं।
कहां से पास करेंगे? देन साइकोलॉजिकल प्रेशर में बहुत रहते हैं, ट्रिमेंडस प्रेशर. व्हेन यू आर इन ट्रिमेंडस प्रेशर, वेल sometimes whatever is need to be seen in plain sight, even those vision get blurred. वो प्रॉब्लम हो जाता है. लैक ऑफ एक्सपीरियंस रहता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है, बुक को फॉलो करें, किसको फॉलो करें, सच काइंड ऑफ कंफ्यूजन envelops you. Okay, and then all of that led to a wrong path. Again I told you, wrong path never bring a better result. It never did, it never will. So this is the reason people fail. I elaborated it in the most exhaustive way that I could in the limited possible time. Now, so when we started with, when the team Change IS came together, and we were thinking almost 4 months back that what we should do, क्या किया जाए, कि इस बार ऐसा कुछ बनाया जाए जिससे कि पीटी. सम मेंबर सजेस्टेड कि क्यों ना क्रैश कोर्स करते हैं. कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि नहीं नहीं सीसेट पे फोकस करते हैं. कुछ ने बोला कि नहीं नहीं कुछ और पे फोकस करते हैं, टेस्ट सीरीज पे करते हैं. एंड देन फाइनली वी कम टू वन कंक्लूजन दैट नो, वी हैव टू आइडेंटिफाई द रियल इशू, नुएंस्ड माइन्यूट लेवल पे जाके एनालाइज करना पड़ेगा. यूपीएससी का ऑल काइंड ऑफ changes that they have brought in last 15 years. Understand that. Understand the theme. Understand the repetition. Understand the logic. Understand the flow. Everything we have analyzed, and then we thought about just one course. Let me tell you. It is a funny one. हमने सोचा कि भाई एक कोर्स ले आते हैं, ये वाला जनरल स्टडीज में क्वेश्चन से डिस्कस कर देंगे. एवरीवन नोज, कॉन्सेप्ट सबको पता है, ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट सबको. आपने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है, सबने लक्ष्मीकांत पढ़ा है, सबने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, सबने सब चीज पढ़ा है. नॉलेज थोड़ा बहुत सबको है. और कम से कम 1 लाख स्टूडेंट हैं, वो एकदम पागल की तरह तैयारी करते हैं. और अगर आप देखोगे 98 कट ऑफ था, 98, 99, 100, 101 एंड 102, 5 मार्क्स में 6000 स्टूडेंट्स वेर प्लेस्ड. 6000 स्टूडेंट उसी 5 मार्क्स में प्लेस्ड था. सोचिए, इमेजिन कीजिए, 10,000 में से 6000 सिर्फ उसी 5 मार्क्स में प्लेस्ड था. तो जो बंदों ने मेंस दिया, द वन हु हैव अपीयर्ड इन मेंस, ओके, उनका भी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन गलत होता तो बाहर हो जाते. आपका भी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही होता तो अंदर हो जाते. तो मैटर जब इस लेवल का कंपटीशन है तब क्यों होगा किसी का. तो हमने सोचा कि ये प्रोग्राम से हो सकता है. कॉन्सेप्ट सबको थोड़ा बहुत पता है, उस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है, एग्जाम रिलेटेड स्किल क्या है, एमसीक्यू सॉल्विंग रिलेटेड स्किल क्या है, कॉन्सेप्ट को जो डिस्कस करेंगे तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस करके डिस्कस कर देंगे, उससे काम बन जाएगा. देन वन फाइन डे आवर टीम मेंबर मिस्टर मयंक आनंद सेड दैट सर सिर्फ हम ये करेंगे तो उससे पास कैसे करेगा बच्चा. हम बोले अरे यार हमने तो 10 दिन से यही रिसर्च किया, डेवलपमेंट रिसर्च में किया, बातचीत करा, तो हमारा यही आया, तो इससे क्यों नहीं पास होगा, हो जाएगा. बोला नहीं, there is issue with CSET as well. Then the team realized that yes, CSET में भी issue है. Then they said that कि कितना भी पढ़ा लो, कितना भी कुछ कर लो, in the end of the day क्या होगा, 35 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. हमने बोला हाँ ये बात तो है, ये बात तो है. तो फिर 35 क्वेश्चन सॉल्व होगा तो रिमेनिंग क्वेश्चन क्या करेंगे. बोला कि आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड गेस भी लाना पड़ेगा, वो भी लाना पड़ेगा. ठीक है, हमने बोला कि ठीक है. फिर बोला कि थोड़ा टेस्ट भी कर लो. फिर तो हमने बोला ठीक है. एंड देन ही फाइनली सेड कि सर एक मेंटरशिप भी दे दो. हमने बोला यार इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम, डोंट यू थिंक द कॉस्ट विल बी वेरी हाई. 50,000 रुपए नहीं होना चाहिए इसका कॉस्ट. You are giving personal mentorship, full and test, art of calculated guess, CSAT, general studies, मतलब बहुत बड़ा हो गया. तो बोला नहीं, we will give it at the lowest minimum price,
but we will give everything because otherwise our student will not pass. अगर सिर्फ ये कर दिया, इसमें हो सकता है गड़बड़ हो जाए. फिर अगर ये नहीं बताया तो ये जो कराया है उसका इफेक्टिवनेस नहीं रह पाएगा. और कुछ कुछ बच्चों का रिदम डिफरेंट होता है. दे हैव डिफरेंट स्टडी प्लान, डिफरेंट थिंग्स. मेनी पीपल जो कि जॉब में हैं, ठीक है, मेनी पीपल जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, नाउ दे फाइंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम होता है. सम पीपल आर मैरिड and they have time related problem as well. Some people started little late but want to appear in the examination. How are we going to do that? Unless and until we don't provide them a certain personal support, okay, वो चीज नहीं हो पाएगा. हमने बोला ठीक है, एक लिमिटेड बेसिस में ये भी दे. दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव वन. रिमेंबर, पर्सनल मेंटरशिप इज नॉट एग्जॉस्टिव मेंटरशिप प्रोग्राम. लिटिल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड देयर. वी डोंट वांट टू लाई. Okay, so that's the reason why everything came. हर कुछ जो यहां पे है लिखा हुआ सब चीज है, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन हां, मैं पहले ही बता दूं, पर्सनल मेंटरशिप डजंट मीन दैट यू कैन कीप कॉलिंग एवरी टाइम. ओके, ये वो सिस्टम नहीं है. पर्सनल मेंटरशिप लिमिटेड है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे होंगे, सबसे बात करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. लेकिन हां, हम लोग थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड आपको जरूर करेंगे, ठीक है. नाउ दीज आर द फीचर ऑफ आवर मास्टर स्ट्रोक प्रोग्राम कि हर चीज कवर करो ताकि फुल्ली फाइनली ये नहीं है ना कि हमारा जीएस में कर लिया आपने एंड इन जीएस यू सिक्योर्ड लेट्स से 115 मार्क्स. लेट्स इमेजिन, ओके, 115 मार्क्स आपने सिक्योर किया. दैट इज नॉट एंड ऑफ द स्टोरी. फाइनली आपको प्रीलिम्स पास कराना रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है. दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. नाउ अब एक इन द इंक्वायरी okay, in the inquiry one of the student asked, I was informed by the team that they are not sure how the question will be discussed. कि क्वेश्चन का डिस्कशन होगा तो होगा कैसे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल दिस was the question we have taken previously as well. okay, अब इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करना होगा तो हम लोग डिस्कस कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करना होगा तो इसको डिस्कस कैसे करेंगे? ओके, वो देखते हैं हम. सो द क्वेश्चन इज अबाउट आरबीआई. हम मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन कैसे डिस्कस करेंगे हम, ताकि आप समझ पाएंगे. अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इज नॉट, वुड इट नॉट डू, वो नहीं करेगा, ठीक है. पहले चीज, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पहले एसएलआर, ठीक है, कट एंड ऑप्टिमाइज एसएलआर. नाउ व्हाट इज एसएलआर? देखो डिस्कशन कैसे होगा मैं बताता हूं. नॉर्मली इन टेस्ट सीरीज व्हाट हैपेंस, वट एवर नॉलेज यू नीड to solve this question, only that much will be provided to you. Well, our purpose is not that. अब इसी क्वेश्चन को डिस्कस करना होगा तो हम लोग का जो प्रोग्राम में डिस्कशन कैसा होगा वो मैं बता रहा हूं. व्हाट इज एसएलआर? एसएलआर is that person of total deposit, total time and demand deposit that the bank keep with themselves. अपने पास बैंक रखता है और ये क्या है? ऑल द टाइम आपको मेंटेन करना पड़ेगा. किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में रख सकते हो, गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, और किस चीज के फॉर्म में रख सकते हो? आप रख सकते हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में. ओके, दीज आर द 3 ways. ओके, नाउ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलता है, तो एमएसएफ फैसिलिटी क्या है? ओके, नाउ एमएसएफ फैसिलिटी इज रिलेटेड टू दैट लेंडिंग बाय आरबीआई टू बैंक्स. फाइन. मोस्टली जो एमएसएफ का जो कहानी है, इट इज रिलेटेड टू, ध्यान दीजिएगा, एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो ओवरनाइट लिक्विडिटी के लिए होता है कि रात में अगर जरूरत पड़ गया आपको ओवरनाइट, तो फिर एमएसएफ हम
यूज करते हैं। और एमएसएफ में जो रेट रहता है वो जनरली रेपो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, रेपो प्लस कुछ होता है, इट डिपेंड्स, रेपो प्लस समथिंग विल हैपन, विल बी देयर। ठीक है, चलो हम अभी वो समझते हैं। बैंक रेट, बैंक रेट इज द रेट एट विच द आरबीआई गिव लोन टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस। नाउ व्हाट इज बैंक रेट, रेपो रेट सेम है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है, ये फिर क्या है, रिलेटिवली लॉन्ग टर्म पर्पस होता है, और रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन दिया जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो फर्स्ट थिंग क्या किया जाएगा, एवरी कीवर्ड विल बी एक्सप्लेन्ड। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है, नॉट, और एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी बोला, तो एक्सपेंशन मतलब मोर, मोर मनी, more money in the market. Now more money means that liquidity high in general जो समझते हैं। ठीक है, तो liquidity high कब होगा, ठीक है, not do बोलता है, which of the following they will not do। याद रखिए these are keywords, normally इसमें आंसर में मार देंगे which will did, which of the following statement is correct करके मार देंगे, not do को नहीं रखेंगे। तो अब देखो SLR, एसएलआर को जो क्या है कि अगर एसएलआर मान लो कि टुडे एसएलआर, जस्ट इमेजिन आई एम सेइंग 18% है, ठीक है, उसको घटा के जस्ट इमेजिन मैं कहता हूं 15% कर दिया, मींस द 3% इज एक्स्ट्रा, 3% एक्स्ट्रा बचा किसके पास, बैंक के पास। 3% का क्या करेगा वो, बेड के नीचे पैसे डाल के तो सोएगा नहीं। ओके, व्हाट दे विल डू, दे विल, देयर मेन बिजनेस इज टू गिव लोन, गिविंग लोन इज इंक्रीजिंग द लिक्विडिटी। तो इसका जो मैनिफेस्टेशन क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज्ड। ठीक है, नॉट डू, कट तो नहीं करेगा, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो हम आ जाते हैं, तुम्हारा ये गया, तुम्हारा ये गया, तुम्हारा ये गया। अब दूसरा पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, आंसर इज दिस, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, कि हम लोग इतना तो बताएंगे, इसके बियॉन्ड भी बताएंगे कि देखो, सी एसएलआर इज अ गुड टूल, sorry, SLR is not a good tool as far as the monetary policy is concerned. Why? Because there is this government security that is available in SLR which creates the issue, which creates the problem. Okay? क्योंकि गवर्नमेंट जो इशू करती है सिक्योरिटी, बिल्स और बॉन्ड के करती है, अब वो जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाता है, वो गवर्नमेंट क्या करता है उस पैसा का, उस पैसा का गवर्नमेंट डेवलपमेंटल वर्क और अदर सॉर्ट ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट या जो भी करती है, जो भी करे गवर्नमेंट, वो पैसा इनडायरेक्टली मार्केट में चला जाता है, इनडायरेक्टली मार्केट में चला जाता है। और जब मार्केट में गया तो लिक्विडिटी घटा, क्या एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के अगेंस्ट हो गया। वैसे भी अब देखो यही क्वेश्चन, ये तो अभी नया है ना, लेकिन सेम क्वेश्चन प्रीवियसली वाज आस्क्ड एज वेल। उसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, यू कैन चेक इट। उसमें इसका लिखा हुआ था, तो हम लोग को रिलेट करेंगे उसको। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बताया, इसके बाद हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, वो भी बताएंगे, ताकि जब अगर इससे क्वेश्चन आए, मे बी डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए यही क्वेश्चन, लेकिन इसका जो बैकवर्ड लिंकेज है, इसका जो फॉरवर्ड लिंकेज है, जो समझाया गया वो समझ के आप एग्जाम में गए तो मार लेंगे। 1500 to 2000 क्वेश्चन डिस्कस करना है। Those are not ordinary question, let me tell you. We have chosen that question from different sources, from many articles related question I was mentioning just a while ago. That questions are there as well. It is a revision program, it is a question solving program, and this question are high probable question. Okay? High probable questions है। और
उस क्वेश्चन को आप करके जाएंगे अगर, तो जो मुझे लगता है अभी बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस, वी हैव एनालाइज्ड इट क्वाइट मेनी टाइम्स, आई थिंक कि नियर अबाउट 65 क्वेश्चन टू 75 क्वेश्चन के बीच में समवेयर जो थीम्स है यहां से आएंगे, जिसको कि आपको सही मारना है वहां पे, बस। ठीक है, इसमें और भी चीज होगा, लेकिन हमने ग्लिम्स दिया कि क्या होगा। ठीक है, चलिए। नाउ अनदर क्वेश्चन दैट केम टू अस वाज दैट सर, ये आप लोग जो बोल रहे हो आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड गैस, नाउ व्हाट इज दिस आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड गैस एंड हाउ दिस आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड गैस वुड वर्क? डू वी हैव अ सेशन on art of calculated guess? So, well, let me tell you one thing. Well, we are catering to art of calculated guess in two ways. Way number one, कि जैसे हमने वहां पे सॉल्व किया, वहां पे भी आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड गेस आपको बताया। दूसरा, पढ़ने का भी जरूरत नहीं था, डायरेक्ट मार सकते थे, वो भी बताया। हर क्वेश्चन में वो होगा, लेकिन 5 days 4 days 6 days में भी वी विल हैव अ डेडिकेटेड सेशन as far as art of calculated guess is concerned, so that what UPSC needs as far as brainstorming about their question is concerned, those skills could be imparted to you. For example, this question, if I take, this question came last to last year, and this is a soccer question. People said that this is a soccer question, and people were scared to see this question because nowhere they found the question. Nowhere in the book, no teacher taught it. Still UPSC asked this question. How can I do this question? Let's see. Under India, under cyber insurance, एक तो इंश्योरेंस सेक्टर ऐसे ही इकोनॉमिक्स में हम लोग कम पढ़ते हैं, अदर देन सोशल इंश्योरेंस, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, इसको छोड़ के और हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी पूछ दिया, अब यूपीएससी पूछ दिया तो क्या कर सकते हैं? फॉर इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स? तो देखो, normally most of the people left it, some people did it incorrectly and some people did it correctly. How? देखो, there is certain rule of insurance. It doesn't matter whether it is cyber insurance or whether it is car insurance. Rule of insurance remains by and large same, only they vary in marginal things. ठीक है, इंश्योरेंस का जो भी स्कीम है, जो भी चीज है, ठीक है, इंश्योरेंस का जो भी स्कीम है, जो भी चीज है, इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। आपने सुना होगा एक्चुअरियल साइंस, एक्चुअरियल साइंस वाला इस फील्ड में काम करते हैं। दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। इंडिया में सोच लो, कंप्लीट द 27 पेपर कंप्लीट करने वाले ओनली 82 इंसान है जो एक्चुअरियल साइंस में है, और उनका पैकेज 10-10 करोड़ रुपए ज्यादा होता है। They are consultant, they can work on their whims and fancies, but whatever they decide mathematical होता है। तो सब रूल जो इंश्योरेंस का होता है सब में सेम होता है। तो साइबर अगर इंश्योरेंस है तो उसी तरह का कार्ड इंश्योरेंस होगा, कौन सी बड़ी बात है, हम पढ़ लेते हैं यहां पे। कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिसरप्टिंग एक्सेस टू वंस कंप्यूटर। सही बात है कि मालवेयर कोई आ गया, कोई वायरस आ गया, कुछ आ गया जिसके कारण से मेरा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम हो गया, तो करेगा ना। अगर मैं कार चला रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया जेन्युइनली, तो भाई जो भी कार के पार्ट मतलब फिक्स करने का है तो करेगा ना, ये तो ऑफ कोर्स सही होगा, कभी ये गलत ही नहीं, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है ये। कार को ले लो, सिंपल। अब देखो कॉस्ट ऑफ, देखो न्यू लिखता है, न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो। यार तुम बताओ, तुम कार चला रहे हो, सामने से किसी ने ठोक दी कार को, somebody struck you from up front as far as the car is concerned, तो उसको क्या माना जाएगा? एक्सीडेंट। केस होगा तो क्रिमिनल केस होगा, कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, पुलिस FIR चार्जशीट, वो एक प्रोसेस अलग है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या देगा आपको? नया कार देगा क्या? कि मेरा जो गाड़ी एल्टो किसी से ठुक गया तो फिर अपने को कोई नया एल्टो खरीद को दे, कोई देगा? कोई नहीं देगा। क्या देगा? बोनेट खराब हो गया, कुछ टूट गया, शीशे टूट गए, उसको दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट एक बोलता है कि नया कंप्यूटर देगा। क्यों देगा भाई नया कंप्यूटर? ये कभी होगा ही नहीं। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब एक बार चेक कर लेते हैं रॉन्ग वाला। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। आंसर बी इज करेक्ट।
पढ़ने की जरूरत ही नहीं है नीचे. This is art of calculated guess. This is one example I have demonstrated, and at least 30 to 35 question will be there where you require art of calculated guess, and it directly fits. Last year as well we have done it, this year as well we are doing it, but we are doing it in a more refined manner. तो दिस आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड गेस जिसको भी इशू था, इस तरह से हम आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड गेस करेंगे. ठीक है, अब एक स्ट्रैटेजी लगा के आप नहीं पास कर सकते हैं अभी का यूपीएससी प्रीलिम्स. यू हैव टू अडॉप्ट मल्टी प्रोन्स्ड स्ट्रैटेजी, ध्यान रखिएगा. ठीक है, तो ये है आर्ट ऑफ कैलकुलेटेड गेस. जो लोगों को कंफ्यूजन था मैंने दूर कर दिया. अब है मेंटोरिंग, एंड आई told it you previously as well. Mentoring sometimes is needed for those people particularly who are very much worried, who is working in corporate sector. उनका क्या होगा, टाइम का दिक्कत है. तो definitely on a limited scale we are provided here to support you. Okay, not a full-fledged mentorship program. Full-fledged mentorship program में तो बहुत कुछ होता है. ठीक है, not full-fledged, but yes, we will support you as far as the scheduling is concerned. We will support you as far as the integration of your study and this program is concerned. These are few things that we will support. Other things based on personal relation you can ask, we can share. ठीक है, this is about mentoring. Now who is this team? One has to know that who is the team that talking so much, and I told you that I am one of the soldiers of Team Change IS. Who are other people? Mr. Manoj Pathak sir would be taking your geography, okay, environment ecology. He has been teaching for the last more than 7 years. He has given IS interview thrice. And then Mr. Ambuj Gautam, he is teaching for more than 5 years, okay. He will take your polity. He has given IS interview twice. Okay. Then this is me. I have been teaching for like more than 6 years. Appeared in interview 4 times. Okay. And I will be taking your economics. Okay. And this is Mr. Vineet Sharma, who has been teaching for near about 5 years and associated with many reputed institutions in Delhi. In given interview twice. Mr. Anand Sharma, Anand Gupta. So Mayank Anand, the one who told us that this sort of things should also be incorporated. तो वो भी हैं, 2 बार इंटरव्यू दिया है. Mr. Anurag, he has experience more than 8 years. Okay, he will be taking your science tech, he will be taking your history, he will be taking different variety of portion. For example, current affairs का बहुत variety वो. And then the entire program is directed by Mr. Neeraj Bhushan, who has vast experience of more than 15 years. Okay, and he has been the architect of many important program that is nowadays a very hit program in Rajendra Nagar or Mukherjee Nagar area, Delhi में जो लोग होंगे जानते होंगे. ठीक है, so he is also in our team, so he is helping as far as the course direction is concerned. So this is your team. I believe that I told you. All right. So this is all. Nothing much has to be told. Everything that I could possibly tell you about the program, about the team, I have already told you. So now we have a question answer session. So please put up some question so that we could I could answer those questions, and then we will wrap up our session, and from tomorrow we will start our journey. Time is limited. We have to capitalize on this time. Results are important. Don't waste your time. That is also true. Many people think about money. मैं बहुत directly बोलता हूँ. Many people think about money. Well, money is important. I can't say that money is not important. If I would say it's not important, I would be lying. I do everything but lying. Okay? Important, but not as important as your time. Don't waste another attempt.
Don't join here, join somewhere else if you find a similar kind of program. But don't waste your attempt. Whatever has been told, adopt that method. This is my simple suggestion to everyone. Now you can ask questions, otherwise we will wrap up. पूछ लीजिए. Good evening, Mukesh. Hello, Krishna. Yeah. I think all the doubts are clear, it seems. So, if you have any other queries, anything, so no issue. Everyone has the phone number and other things, I guess. तो हम लोग, आप लोग वहां भी ये कर लीजिएगा. सर 2023 के लिए एंड कॉन्सिक्वेंट ईयर के लिए ऐसा प्रोग्राम आना चाहिए. पहले 2022 पार कर लेते, फिर 23 में पहुंचेंगे. टाइमिंग ऑफ द क्लास जो होगा आपका, वो होगा यही 3 to 5. ठीक है, 3 to 5 हमारा टाइमिंग होगा. जो लोग छूट जाएगा, जिनका मान लीजिए क्लास, वो लोग करेंगे, उनको वीडियोस मिल जाएगा. कोई डाउट होगा वीडियो में तो दे कैन आस्क, वी विल मेक अ ग्रुप फॉर दैट. चलिए, तो आई गेस ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड. सो लेट्स रैप अप दिस. विल मीट टुमारो. हाँ, टुमारो दिस सेशन विल बी कंडक्टेड एट अ डिफरेंट प्लेस एंड जो जूम से होगा, और वहां पे जो हैं, जो रजिस्टर्ड कर लिए हैं, उनके लिए हम लोग का डिफरेंट एक ग्रुप बनेगा. उस ग्रुप में सब लोग रहेंगे. विल शेयर द मटेरियल. हर दिन मटेरियल भी जाएगा. जो क्वेश्चन डिस्कस होगा विथ एक्सप्लेनेशन विल बी सेंड टू यू. फाइन. और कोई डाउट होगा तो वी आर देयर टू क्लैरिफाई ऑल द डाउट. ठीक है. थैंक यू वेरी मच गाइस. विल मीट. थैंक यू.